कल आपने लिंक्डइन पे डाला था कि ज़िद बहुत ज़रूरी है। मतलब आपकी ज़िद, संयम और संघर्ष, ये तीनों सफलता की सबसे पहली सीढ़ी होती है। व्हेन अ फाउंडर स्टार्ट्स, द ओनली एस्पिरेशन अ फाउंडर हैज़ इसकी कुछ बड़ा बनाना है। इट्स ओनली व्हेन यू स्टार्ट बिल्डिंग, राइट, देन यू स्टार्ट आर्टिकुलेटिंग बेटर। तो जब हमने बनाना स्टार्ट किया तो पहले बोला कुछ बड़ा बनाना है, फिर हमने बोला भारत देश के लिए बनाना है, फिर हमने बोला कि भारत देश में 6 लाख गांव हैं, हर गांव में हमको इंश्योरेंस देखो का एडवाइज़र रखना है। अब जब हमको लगता है कि वो सपना हमारा पूरा हो रहा है तो हम ये कहते हैं कि यार हमको इंडिया से वर्ल्ड की फर्स्ट ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी लेनी है। The first word that comes to mind when I say the word money. पर्क, First word that comes to mind when I say the word intrapreneur. रोटी कपड़ा मकान, When I say fun, don't say insurance, Ego. डांसिंग ऑन पंजाबी सॉन्ग्स। Hi everyone. All right, thank you so much for sharing your Friday evenings with us, and we hope that you get to learn and hear from somebody who I deeply admire and who's been able to pull off something almost unheard of in this space. Fortunately, interacting with our audience, I realize there's a lot of folks from the insurance industry. So डोंट स्केयर मी प्लीज। so feel free to grill Ankit after, and we'll do that as a part of this. But Ankit is somebody who, at this point in time, needs no introduction. But what I've done in these conversations at the quorum before is that I've actually tried to get to know the person behind all of the hype and everything that's coming out. And what we found found my team and I, was that you can actually get to learn a lot about people on social media. So what we do here is that we try to unpack a few elements and few questions through public queries, let's say that, right? So what we do is we stalk you everywhere, right? We look at comments, social media posts, and everything, and see what are the burning questions, right? So that through those questions, people get to know you better. How does that sound? That sounds scary, but it's good. But good. All right. We start with the first one, right? Now, this is a question which is on a lot of people's mind, but this comes out of a YouTube comment video, right? It says that Policy Bazaar exists karta tha, to ye kahan se grow kiye? This is when there was a video about you guys raising $150 million Series A, and there's a lot of comments like this, right? But interestingly, this is all like the iceberg theory, right? People only see the top, they don't see the bottom. So would love to begin by, asking you, tell us about that, the stuff below the water of the iceberg. कहाँ से grow किया आप? So I think मैंने कल अपने लिंक्डइन पे डाला था कि ज़िद बहुत ज़रूरी है। मतलब आपकी ज़िद, संयम और संघर्ष, ये तीनों सफलता की सबसे पहली सीढ़ी होती है। तो मतलब पॉलिसी बाज़ार है, पॉलिसी बाज़ार था, एंड आई एम श्योर पॉलिसी बाज़ार रहेगा। बट भारत देश में 150 करोड़ लोग हैं, और उन 150 करोड़ लोगों में 80% आबादी आज के दिन भी टीयर 2 एंड बियॉन्ड शहरों में रहती है। तो मैं अभी जैसे यहाँ आने से पहले आई वाज सिटिंग विद द इन्वेस्टर एंड आई टोल्ड हिम कि देखिए हम तो बहुत ही देसी कंपनी है, हम बॉम्बे, दिल्ली, मद्रास के लिए तो नहीं बना रहे, खाली हम यहाँ से 200 किलोमीटर आगे जो जगह हैं उनके लिए बना रहे हैं। तो मतलब जब हमने धंधा बनाना स्टार्ट किया था, हमने ये धंधा बनाना स्टार्ट किया था उन लोगों के लिए जो गांव में है। हमारा एक सपना था 2016-17 में जब हमने ये कंपनी स्टार्ट की थी कि भारत के क्या 6 लाख गाँव में हम बीमा को लेके जा सकते हैं। बीमा इज़ हिंदी इक्विवेलेंट ऑफ इंश्योरेंस, कि इंश्योरेंस को कहाँ वहाँ लेके जा सकते हैं क्या। और हम इंटरनली एक थ्योरी बोलते थे 3 B's, जिसको हम कहते हैं बीमारी, बेरोज़गारी और बीमा। भारत देश में हम सबको पता है कि बीमारी बहुत प्रेवलेंट है, बट क्योंकि इतनी बेरोज़गारी होती है जिसकी वजह से गरीबी है, लोग अपनी बीमारी का ट्रीटमेंट नहीं करा सकते। तो हमने बोला कि क्या हम लोगों की बेरोज़गारी का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं बाय अ गिग इकोनॉमी, बाय मेकिंग देम इंश्योरेंस एजेंट्स। द डे वी आर एबल टू डू दैट, we will be able to train them how to sell insurance, and they will also be able to buy insurance. And if they are able to buy that, right, then you would have also solved for illness, thus solving for people getting into poverty. तो धंधा स्टार्ट हुआ था ज़िद से कि हमको कुछ बड़ा बनाना है, भारत के लिए बनाना है।
फिर हमने बोला अगर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो उस प्रॉब्लम को ऐसे सॉल्व करना है कि ग्रास रूट पे सॉल्व हो सके. टुडे इंश्योरेंस देखो कि जो एजेंट पार्टनर्स हैं, भाई बहन हैं, वो 1800 शहरों में काम करते हैं. वी कवर 98% ऑफ इंडियाज़ पिन कोड्स. अराउंड 1.25 लाख एजेंट्स हैं जो हमारे साथ काम करते हैं डायरेक्टली, और अगर हम अपने पार्टनर्स को मिला लें तो 1.25 लाख से 1,80,000 एजेंट काम करते हैं, जिसमें 20% महिलाएं हैं. एंड हमारे एजेंट्स हमारे प्लेटफॉर्म पे अगर 6 क्वार्टर काम करते तो उनकी आमदनी 5x बढ़ जाती है. तो ये हमारे थॉट प्रोसेस थे और उसके अराउंड हमने धंधा बनाना स्टार्ट किया. Very interesting, यार. The crux of this question, right, is that कि आप a lot of the work that you guys did behind the scenes before there was anybody to appreciate it, right? And that is the unsexy part, जो आप कह रहे हो गांव-गांव में जाके लोगों को सिखाना और फिर वो distribution play करना, right? Tell us the early days, right? When you conceptualized insurance देखो, penetration was low. But where did that entire, how was that entire road from the time, let's say, that happened, that you guys conceptualized it, until the time that you were doing what you were doing on this car? Firstly, tell us what you were doing on the hood of the car in the middle of what looks like AeroCity. We'd actually signed the term sheet in March, but contract negotiation back and forth करते करते I think हमको September हो गया था. And I come from a very religious family, and I also believe in astrology. I practice astrology. तो जिस दिन फाइनल हो गया था तो मैंने अपने एस्ट्रोलॉजर को फ़ोन किया, गुरुजी को. मैंने गुरुजी से पूछा कि हम साइन कितने बजे कर सकते हैं. तो गुरुजी ने एक टाइम बोला. अब उस टाइम पे हम हाईवे पे थे, हम कोई एक ENY के इवेंट पे जा रहे थे. तो ईश गाड़ी चला था. मैंने ईश को बोला भाई टाइम हो गया, गाड़ी साइड कर, 2 मिनट बचे. और हम गाड़ी पे साइन कर रहे थे और पुनीत जो हमारे CFO हैं, पुनीत फ़ोटो खींच रहे थे. आई थिंक दिस वॉज वन ऑफ द मोस्ट इमोशनल मोमेंट्स फॉर मी एज अ प्रोफेशनल. एंड द रीज़न वाई एम सेइंग दिस कि जैसे इन्होंने बोला है ना कि आप 7 साल से मेहनत कर रहे हो, लोगों को पता नहीं आप क्या कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, यू आर एन अंडर डॉग. इट्स नॉट ईजी, राइट? एवरी डे इन द मॉर्निंग यू हैव टू गेट अप, मोटिवेट योर सेल्फ, think about your team, think about your partners, think about everybody who's been a part of this journey, and just make sure that you turn up, right? I think the hardest part for an entrepreneur is turning up every single day, and you don't get rewarded for it. You don't get rewarded for it. बैंक अकाउंट में पैसा है नहीं है, आपके इन्वेस्टर आपसे खुश है नहीं है, आपका कस्टमर आपसे नाराज़ है नहीं है, पार्टनर आपको छोड़ के जा रहा है, बट एज एन एंटरप्रेन्योर यू जस्ट हैव टू टर्न अप. तो आई थिंक 7 साल में जो सबसे कंसिस्टेंट चीज़ हमने की थी, वी जस्ट टर्न अप एवरी सिंगल डे. सेकेंड, ये जो पूरी जर्नी होती है ना, जैसे आपने बोला कि आप एक अच्छी पिक्चर देखते हो ना, आपने कोई अच्छा शो देखा, चाहे शार्क टैंक देखा, चाहे अभी मेरा शो आ रहा है इंडियन एंजल्स देखोगे, है ना, तो आपको एक अच्छी पिक्चर दिखेगी. बट उस पिक्चर के पीछे की जो मेहनत होती है ना, वो कई महीनों की मेहनत होती है, विच इज़ रियली अनसेक्सी, रियली अनग्लैमरस. बट आई थिंक दैट इज़ वॉट इज़ द जर्नी एवरी फाउंडर एस्पायर्स फॉर. That is the journey which you live for, and that journey is not a journey which you do alone. You do it with thousands of people, और आपके साथ कई लोगों की आशाएं, कई लोगों की दुआ, कई लोगों की हिम्मत जुड़ी होती है. तो फाउंडर एक चेहरा होता है, एक मुखौटा होता है. मैं सबको ये कहता हूँ, मतलब आई एम प्रिविलेज्ड टू बी द फेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, बट द ऑर्गेनाइजेशन इज़ वेयर इट इज़ बिकॉज ऑफ द पीपल हु आर बिहाइंड मी, एंड आई थिंक दोज पीपल बिल्ड द कंपनी. एंड इन क्विकली 60 सेकेंड्स ये जो जर्नी स्टार्ट की थी, हमने ये जर्नी स्टार्ट की थी, हमारे फर्स्ट एजेंट जो बने थे हरियाणा में एक जगह बहादुरगढ़ से, हमारे फर्स्ट एजेंट बने थे. मैं हरियाणा रोडवेज़ की बस पकड़ के गया था उनसे समझने के लिए. एंड मैंने उनको बोला बाबूजी मैं गिरनार से आया हूँ. उस समय हमारा नाम इंश्योरेंस, देखो कंज्यूमर नेम नहीं आया था, गिरनार इंश्योरेंस ब्रोकर, जिधर से लाइसेंस है. तो कहता है के बावली पूछ बात करा तू, ठीक है. सो दैट इज़ हाउ द कन्वर्जेशन स्टार्टेड. एंड टुडे ही स्टिल वर्क्स विद अस. अबाउट 8 years हो गया, अभी भी 7 साल 8 साल हो गया, अभी वो काम कर रहे हैं हमारे साथ. एंड ही इज़ द वन हु एक्चुअली टॉट अस व्हाट इट टेक्स टू बिल्ड इंश्योरेंस. मेरे को कोई फैंसी क्लासरूम में कहीं पे कोई नहीं सिखाया था, पर उन्होंने सिखाया था. बोला ये हमारा बैग है, इस बैग में एक कवर नोट बुक है, इस बैग में एक चेक कलेक्ट करने का टूल है, इसमें कैलकुलेटर है. अगर आप इसको रिप्लेस करके एक ऐप बना दोगे तो भारत देश के सारे एजेंट आपके साथ काम करेंगे. एंड आई थिंक every product iteration we did, he used to work with us, he used to help us, and I think that's how we built it, brick by brick. Well, that's a really wonderful story here. And what I would actually like to ask you, right, is that
this is the time you're signing the $150 million term sheet, right? The Series A one. And before this, when you were kind of doing this, there would be a lot of moments where you felt lost, right? Where you look lost here too, but but what was that? Were there like some crunch moments which actually became very deciding points, where you felt कि यार पता नहीं चल रहा, but a lot came out of that? सो आई थिंक इसका ना थोड़ा 10 साल पहले जाते हैं, 10 या 15 साल पहले कैंपस से स्टार्ट करते. सो मैं कैंपस में मतलब आई वॉज ए CS रैंकर, आई वॉज इन DU, आई वॉज माई बैच टॉपर. और जब समर प्लेसमेंट के लिए कंपनी आती थी तो हर कोई कहता था यार, और मेरे को बिहारी बोलते थे, बोलता है बिहारी का तो हो जाएगा, इससे तोड़ कोई है ही नहीं. और पहली 5 कंपनियों ने मेरे को रिजेक्ट कर दिया, 4-5 कंपनियों ने. अब मेरे को समझ में नहीं आ रहा भाई ये क्या हो गया मेरे साथ, मैं डिप्रेशन में आ गया. तो मेरे एक सीनियर थे, ही इज़ विथ मैकेंजी राइट नाउ, तो उन्होंने बोला था एवरी टाइम समबडी क्वेश्चंस यू इन लाइफ, राइट, हिट बैक हार्ड, बिकॉज व्हेन ही इज़ क्वेश्चनिंग यू, ही इज़ क्वेश्चनिंग योर एबिलिटी टू डिलीवर, राइट, हिट बैक हार्ड. सेकेंड ही सेड कि ज़िंदगी हर किसी को एक मौका देती है, और वो मौका कई बार देती है. अगर आप उस मौके को पकड़ लोगे तो आप लाइफ में आगे निकल जाते हो. अगर वो मौका मिस हो गया देन यू अगेन हैव टू वेट फॉर द नेक्स्ट चांस, है ना. सो ये 2 चीज़ें थी, ये मेरे को हमेशा लाइफ में याद रही. तो आई थिंक एवरी टाइम व्हेन देयर वाज दिस सिचुएशन व्हेन आई हैड टू फोर्स माई सेल्फ टू गेट आउट, और आई फेल्ट लॉस्ट, और समबडी क्वेश्चनड मी, आई यूज्ड टू रिमेंबर दीज 2 लाइन्स एंड आई यूज्ड टू से यार अगर हमसे ना हो पाएगा तो किसी से ना हो पाएगा. दैट्स इट. Being lost, I think on that note, right, you actually do have thoughts on being lost. You said that being lost is okay. People who have never been lost have never made it big. Is that where it's coming from? या मतलब जैसे अभी जस्ट मैंने डाला है लिंक्डइन पे, मतलब आई जस्ट पुट इट अभी कि यू विल ऑलवेज बी अ विलन इन समबडी स्टोरी, राइट. आप किसी के लिए कुछ भी कर लो, है ना. अगर रिलेशनशिप ना कभी ऐसे नहीं होते हैं, रिलेशनशिप्स आर ऑलवेज लाइक दिस, राइट. सो मतलब वैसे ही है ना कि हमेशा आपको नहीं लगेगा, मतलब आज स्नेल आई कांट टॉक अबाउट आवर कन्वर्जेशन, राइट, बट 2 weeks ago life was different for you. You made a trip overseas and life is all of a sudden different for you, right? It is. So है ना. तो ज़िंदगी में एज अ फाउंडर हमारा काम है चलते रहना, हम रुक नहीं सकते. अगर हम रुक गए तो ज़िंदगी हमारे लिए रुक जाएगी. एज फाउंडर्स आई थिंक वी आर गिफ्टेड बाय गॉड दैट वी हैव द एबिलिटी टू क्रिएट अ डिफरेंस टू मिलियंस ऑफ लाइफ. And I'm not talking about thousands, millions of lives. And that's a gift which God has given us. He has not given us this gift to stop. That's why when we feel lost, it's okay to walk, it's okay to think, but chalte raho. Very interesting. You know, आपकी एक recently there was a picture in the media, and I really like that picture because I think a lot of entrepreneurship was glamorized the wrong way. Right? You want to get people, you want to have people be inspired to build new things, but just the idea that hey, it's all hunky dory and you'll make a lot of money and it just happens right away is the wrong perception. This is picture which came out. I think this is you, right, on the road or in one of the villages. Tell me about this. So this is a Forbes का photo shoot. They'd asked कि आप कैसे करते हो, and मतलब they wanted to do it in office. So I said why do it in office? Let's go and talk to one of our agent partners and we will show you how they do a live sale, right? वो कैसे किसी को बेचते हैं. तो this is somewhere in Haryana. So आपको जो लेडी टी-शर्ट में दिख रही हैं, she is one of our first female agents in गुड़गांव. तो दीदी के साथ हम गए थे. This is a family in a village जहाँ पे दीदी कई लोगों को ट्रैक्टर का इंश्योरेंस क्यों होना चाहिए या हेल्थ का इंश्योरेंस क्यों होना चाहिए वो समझाती है और वो बेच रही है. And I think this is where I enjoy the most. Matlab, I have one of my mentors here in the audience, Deepak sir. So Deepak also knows that Ankit enjoys best when he's on the field. तो मेरे को सबसे अच्छा फील्ड पे लगता है, अपने एजेंट भाई बहनों से बात करना लगता है. तो this is where we are trying to convince her to buy a health and tractor insurance, but unfortunately we failed in convincing her to buy a health insurance. But we convinced her to buy a tractor insurance. Hopefully someday I'll be able to convince Didi to buy a health insurance also. You know, you like to be on the road, you like to be in the field, clearly, right? But to build the kind of distribution that Insurance Deco has today, and you want to in the future, you have to motivate your team and people around you to do it. What has that journey been like of actually getting the same motivation that you have to be on the field
to get that in your team? How do you look for that? How do you build that? मतलब आज से 6 महीने पहले तक कंपनी में जो भी हायरिंग होती थी फॉर एनी लेवल, आई यूज़ टू मेक श्योर दैट इधर बिटवीन मी और ईश इज़ माई पार्टनर इन क्राइम एंड अदर फाउंडर CTO, वी स्पोक टू देम फॉर 5 मिनट्स, है ना. मतलब चाहे हम रात को 10 बजे करें, सुबह 6 बजे करें, जब भी करें, पर हम 5 मिनट के तो ज़रूर बात करते थे. और हम इसलिए बात करते थे क्योंकि ना कल्चर चेक बहुत इंपॉर्टेंट होता है. कंपनियाँ फेल क्यों होती है? कंपनियाँ फेल इसलिए होती है क्योंकि कंपनी का कल्चर ख़राब हो जाता है. कहीं ना कहीं फाउंडर्स वो कम्युनिकेट उस तरीके से नहीं कर पाते जैसे वो पहले 100, 200, 250, 300 एम्प्लॉयज़ में करते हैं. और फाउंडर्स अपने कुकून में होते हैं कि यार मैंने कुछ बना दिया है, मैं बड़ा बन गया हूँ, मेरे को बात करने की ज़रूरत नहीं है. बट आई वॉज़ वेरी वेरी क्लियर फ्रॉम डे वन, वी विल नेवर अलाउ दैट टू हैपन. बीच में 5-6 महीने मतलब आई वॉज नॉट वेल, पिताजी की तबीयत ठीक नहीं थी, तो आई कुडंट फोकस ऑन इट. बट नाउ अगेन आई हैव रिज्यूम दैट. Any offer which goes out in the company, it is mandatory that Ankit Agarwal is going to speak to the individual or Ish Babbar is going to speak to the individual. तो हम कल्चर के लिए हायर, कल्चर इज समथिंग वी टॉक. व्हेन यू केम टू आवर ऑफिस ऑल्सो आपने देखा हम कल्चर के बारे में बात कर रहे थे. दूसरा है कि हम एडुकेशनल डिग्री के लिए नहीं हायर करते, हम एटीट्यूड के लिए हायर करते हैं. तो मतलब वी आर वेरी वेरी क्लियर दैट you may have a great degree from a great college, you may have worked with a great organization that filters you, that gets your CV noticed, but to work for us you really need to have a good attitude. So हम बहुत ही क्लियर है इस चीज़ के लिए, हम क्या एटीट्यूड के लिए हायर करते हैं. तीसरा, हमारे लिए आपका पास्ट वर्क एक्सपीरियंस इंपॉर्टेंट नहीं. ऑब्वियसली फॉर सर्टेन रोल्स इट इज़ इंपॉर्टेंट. इफ़ यू आर हायरिंग अ डेटा साइंटिस्ट, यू आर हायरिंग अ SD 1, 2 या कोई लीगल रोल के लिए हायर करो, उसके लिए ज़रूरी है. बट जो बाकी जनरलिस्ट रोल्स होते हैं उसमें हम ये कभी नहीं बोलते कि आपके पास पास्ट एक्सपीरियंस ही होना चाहिए तो ये हम हायर करेंगे. अगर आप में आग है कुछ बनाने की, आप में जज्बा है मेहनत करने का, तो हम आपको अपनी टीम में लेंगे और आप में इन्वेस्ट करके आपको ग्रो करेंगे. That's a very interesting insight because you would think कि a lot of entitlement also comes when you come from, let's say, very elite organizations or elite schools, right? How do you kind of solve for that? Because you want on one side to have balance, little bit of pedigree, but to get people to do all of this on the field. ऐसा है नहीं स्नेहल की ना, मतलब लोगों के अंदर इंटाइटलमेंट आ जाता है. देखिए मतलब इंटाइटलमेंट तो कहीं पे भी लोगों के अंदर आ जाता है ना. मतलब आज कोई वर्ली में रह रहा है तो उसके अंदर हो सकता है इंटाइटलमेंट नहीं हो बिकॉज उसकी अपब्रिंगिंग ऐसी है. और कोई कहीं बोरीवली में रह रहा है उसमें इंटाइटलमेंट आ जाए क्योंकि उसकी अपब्रिंगिंग ऐसी है या उसका थॉट प्रोसेस वैसा है ना. तो आई थिंक इट इज़ वेरी रॉन्ग टू क्लासीफाई दैट जस्ट बिकॉज somebody is from a pedigreed college he has that entitlement. Should that person be proud of what he's achieved? Obviously he's really worked hard to get into an IIT, get into an IIM and then a McKinsey or a BCG, right? And he's genuinely smart, that's why he got there. And smart people should they have attitude? Yes, they should have attitude. I don't think that's wrong. But we have a bunch of folks from IIT IIM. Aman was here. He unfortunately had to leave to catch his flight. You talk to him. He's a topper from IIM. He's one of the most rockstar guys we have, and he's absolutely humble. And I think humility does not have anything to do from the degree which you have, right? It's not related to the degree which you have. It is related to your self-awareness. It is related to the way you think about yourself, or you've been forced to think about yourself from childhood, right? So, and it also depends on the kind of people you work with. अगर if as a founder I catch the last flight out, I make sure if I land, even if I land at 3 AM in the morning, there's no Innova waiting for me, but there's a auto rickshaw which I will catch, and I will not go and stay in Trident or Westin, but I will go and stay in a Oyo. तो मेरी पूरी कंपनी वैसे करेगी, है ना. बट अगर मैं बोलूँगा नहीं यार मेरे को बिज़नेस क्लास में जाना है और मेरे को एयरपोर्ट से होटल जाने के लिए एक मर्सिडीज़ चाहिए और मैं 5 स्टार होटल में ही रहूँगा, तो पूरी कंपनी वैसे करेगी. तो मतलब ये तो आप जैसे होते हो, जैसे पिताजी होते हैं बच्चे वैसे ही होते हैं, जैसे पिताजी माताजी होते हैं बच्चे वैसे ही होते हैं ना, क्योंकि आपका फर्स्ट इंटरेक्शन टू द वर्ल्ड उनसे ही होता है. वैसे ही फाउंडर जैसा होता है, कंपनी वैसी बनती है. So culture starts from the top. That's a very good answer. I think this was the first phase of just getting to know you a little bit, your thought process, right? The next part I actually want to tap into, what are the questions that the broader public actually has for Insurance Dekho, right? So we went from your social media and we went to Quora. The first question is,
Is Insurance Dekho an authentic business? Can I safely buy health insurance through them? This is an unanswered question on Quora. कोरा पे है नहीं, देखिए मतलब ऑनेस्टली एज अ कंपनी हम कभी भी अपने आप को बेचने की कोशिश नहीं करते. अब टीम पीछे पड़ के सोशल मीडिया और ये सारा चीज़ कर रही है, तो आई थिंक दिस इज़ अ गुड फीडबैक. आई टेल देम टू लुक एट कोरा. ये सवाल इसलिए आता है क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस में ना मिस सेलिंग बहुत होती है. आप समझिए, बीमा लोग क्यों नहीं खरीदना चाहते, इंश्योरेंस क्यों नहीं खरीदना चाहते? इसलिए नहीं खरीदना चाहते हैं क्योंकि लगता है उनको क्लेम ही नहीं मिलेगा. आज दीपक सर इज़ हियर. आप दीपक सर से कभी आफ्टर दिस ओवर ड्रिंक्स यू शुड आस्क हिम, यू नो, व्हाई don't people buy insurance? Because they're not sure if they will get claims. Why does the regulator have to publish so many reports or force insurance companies to publish so many reports कि आपका claim settlement ratio कितना, आपका reputation किस वजह से हुआ, किस लिए हुआ, आप वो बताइए, है ना? तो अब किसी ने insurance.com खोला होगा. अब हमारे पास अक्षय कुमार नहीं थे उस समय हमारे पास फरहान अख्तर भी नहीं थे. तो अब जब बाद में फरहान अख्तर आ गया तो लोग ये सवाल पूछना बंद कर चुके हैं, है ना? तो ये सवाल आई एम श्योर फरहान अख्तर और जीतू भैया के पहले के सवाल होंगे. जब पहले जीतू भैया आए फिर फरहान अख्तर आए तो लोगों को ट्रस्ट हो गया. Good. So, before I move on to the next question, right? Can you just, if you have to lay out very, very simply, and I know this is a little bit of a foregone conclusion, but when you started Insurance Dekho, there would have been like a pure mission statement at that point, right? Because we know that insurance penetration was very low in India, 5% or so, if I'm not mistaken. I want to understand, when this started, you knew there'd be a lot of hurdles, etc. But what was that mission that you guys were kind of focused on in the early days? कुछ बड़ा बनाना है, सिंपल. मतलब आई कुड हैव गिवन यू 10,000 आंसर्स टू अपीयर इंटेलेक्चुअल, टू अपीयर कूल. यार घंटा, मतलब किसी फाउंडर को इतना दिमाग में कुछ भी नहीं होता जब वो कंपनी स्टार्ट करता है. उसको ये लगता है कि यार कुछ बड़ा बनाना है. दिल से बोल रहा हूँ, मतलब, है ना? मतलब आई कुड लाई, आई कुड अपीयर टू बी कूल, बट नहीं. व्हेन अ फाउंडर स्टार्ट्स, द ओनली एस्पिरेशन अ फाउंडर हैज़ इसकी कुछ बड़ा बनाना है. इट्स ओनली व्हेन यू स्टार्ट बिल्डिंग, राइट, देन यू स्टार्ट आर्टिकुलेटिंग बेटर. तो जब हमने बनाना स्टार्ट किया तो पहले बोला कुछ बड़ा बनाना है, फिर हमने बोला भारत देश के लिए बनाना है, फिर हमने बोला कि भारत देश में 6 लाख गांव हैं, हर गांव में हमको इंश्योरेंस देखो का एडवाइज़र रखना है. अब जब हमको लगता है कि वो सपना हमारा पूरा हो रहा है तो हम ये कहते हैं कि यार हमको इंडिया से वर्ल्ड की फर्स्ट ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी देनी है. आज कई बच्चे होंगे यहाँ पे जो IIT-IIM के होंगे, जो देख रहे होंगे ना. अगर IIT-IIM में 3 फॉरेन बैंक्स आते हैं और 2 इंडियन बैंक्स आते हैं सेम टाइम पे, डे 0 स्लॉट पे, 90% बच्चे पहले 3 विदेशी बैंक्स के लिए अप्लाई करेंगे, वो 2 देसी बैंक के लिए बाद में अप्लाई करेंगे, या इंडियन बैंक्स के लिए बाद में अप्लाई करेंगे, बिकॉज वो ग्लैमर फैक्टर नहीं है, राइट? सो आई थिंक वी एज वी वर बिल्डिंग द कंपनी, आर गोल, मिशन, विजन जस्ट स्टार्टेड गेटिंग बेटर एंड बेटर एंड बेटर, राइट? आपका जो कोर थीम होता है ना वो हमेशा सेम रहेगा, बट आपको जो बनाना होता है उसकी क्लैरिटी आपको कुछ सालों बाद आती है, राइट? व्हेन यू सीन स्केल, व्हेन यू गॉट मोर कन्विक्शन, राइट? तो आज भी अब मेरे से पूछोगे तो मैं ये बोलूँगा कुछ बड़ा बनाना है, बट उस बड़ा बनाने का डेफिनेशन अब चेंज हो गया है. पहले हमको बड़ा बनाना था शायद दिल्ली के लिए, फिर हमको बड़ा बनाना था इंडिया के लिए, फिर हमने बोला नहीं भारत के लिए बड़ा बनाना है. अब हम कहते हैं कि हमको वर्ल्ड को इंडिया से पहली निकली हुई ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी देनी है. दैट इज़ आवर विजन, दैट इज़ आवर मिशन. Wonderful. I think the next question I'll move on to, right, is I think it's from a VC analyst. But what are the benefits of Insurance Dekho's tech-driven last-mile distribution model for insurance outreach in India? Pele, I think let's break that down, right? Tell us why Insurance Dekho is a distribution play. Let's start with that. क्योंकि जब ऑप्शन था, मतलब कल एक फाउंडर से मिला था मैं, है ना? वो फाउंडर अपनी कहानी बता रहा था कि कैसे 10 लाख रुपए से उसने 10,000 करोड़ की कंपनी बनाई है और अब उसकी कंपनी IPO पे जा रही है, ठीक है? इट्स इन द लॉजिस्टिक स्पेस. सो 2009 to 2022 ही इज़ क्रिएटेड अ 10,000 करोड़ कंपनी विच इज़ जस्ट फाइलिंग फॉर इट्स IPO. तो वैसे जब हम, एंड आई आस्क्ड हिम कि मतलब आप आज जो कर रहे हो उस समय क्यों नहीं कर रहे? तो उसने बोला पैसे नहीं थे, राइट? तो ऑनेस्टली क्या मैन्युफैक्चरिंग करने का मन था उस समय? हाँ, सोचा भी था, उस समय उस तरफ दिमाग भी लगाया था, बट वन, वी डिड नॉट हैव कैपिटल. सेकंड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, वी डिड नॉट हैव द कैपेबिलिटी. मतलब आई जस्ट डिड नॉट नो. अगर कल उस समय स्टार्ट भी कर देता तो दैट वेंचर वुड हैव बीन डेस्टिन्ड टू फेल,
because I did not know anything about underwriting. I did not know anything about what it takes to build a global insurance company, right? But distribution आता था, क्योंकि distribution मैंने अपनी पहली वाली कंपनी में बनाया हुआ था. 2005 में मैंने कोटक में काम किया हुआ है, आई डी बैंक में ऑफ रोल एम्प्लॉय था, वहाँ काम किया हुआ है, तो डिस्ट्रीब्यूशन आता था. प्लस जब आप नीचे जाके बात करोगे, है ना, तो उस समय भारत देश में 50 इंश्योरेंस कंपनीज थी. आप टॉप की 7 इंश्योरेंस कंपनीज को हटा दो, बाकी कंपनियों का प्रेजेंस ही नहीं होता था छोटे छोटे गाँव में, छोटे छोटे तबकों में. तो उन सबको आपकी ज़रूरत थी, और गांव और तबके में जो लोग रहते थे उनको आपकी ज़रूरत इसलिए थी ताकि आप उनको और इंश्योरेंस कंपनीज के प्रोडक्ट दे सको. तो एक डिस्ट्रीब्यूशन आता था, दूसरा मार्केट की वो ज़रूरत थी, तीसरा हमने ये देखा कि मार्जिन एक्सपेंशन आप कहाँ कर सकते हो, राइट. सो वी रियलाइज्ड इफ़ यू कंटिन्यू टू स्केल you become a big partner to insurance companies. So suppose if somebody is doing 3,000 crores of premium a year and you are 10% of that individual company's premium, then you become a core partner for that company. You can work with the company in co-creating products if it is allowed within the regulator guidelines, right? और you can at least advise them कि market में ये चलता है, ये नहीं चलता है, इसको आप ऐसे करोगे तो आप problem solve कर सकते हो. So we realized we could do a lot of things without actually being a underwriter or an insurance company, but by being a distributor. And lastly देखिए, distribution is king. ये ना नोकिया ने सिखाया था. मतलब आप देखो आज से, मतलब जब हम छोटे बच्चे थे 2004, 5, 6 की बात करें ना, मतलब आप कहीं पे भी चले जाओ भारत देश में, हर जगह नोकिया की दुकानें दिखती थी, हर जगह नोकिया का फ़ोन बिकता था, राइट. सो आई थिंक डिस्ट्रीब्यूशन इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव थिंग टू बिल्ड एंड द मोस्ट पावरफुल थिंग टू बिल्ड. अगर आपने राइट डिस्ट्रीब्यूशन बना दिया है and you're in the financial services space, everybody will want to work with you. And that's a very interesting insight as to the execution capability as well, right? Because distribution करने के लिए you have to be able to execute on the ground. So that's a very interesting answer. You also mentioned insurance companies, right? And a lot of them, almost all of them, are now partners. Can you walk me through जो आपके early days थे of actually approaching these insurance companies कि हम आपकी penetration बढ़ा सकते हैं और हम ऐसे कर सकते हैं? What were those reactions? How did you guys kind of get those guys to convince them? आज it might be easier because you have so many of them. What were the early days like? So जब हमने 2015-16 में स्टार्ट किया था तो हम जाके इंश्योरेंस कंपनीज को बोल देते हैं आप हमको API दे सकते हैं क्या, है ना. तो कई लोगों क्या दे सकते हैं? API. अच्छा, So basically you integrate with them, right? So you ask them for the kit which is called API. A lot of them did not know what API is, right? क्योंकि जो बड़ी कंपनीज थी उनके पास थे, कई छोटी कंपनीज के लिए प्रायोरिटी ऑर्डर में नहीं था ये, right? Because they were a primarily agency distribution company. I remember I was chatting with the distribution head of an insurance company, and I had my product guy with me in the meeting here only in Bombay. And we went to meet him and we said, sir, can you please help us meet your tech and product team? And he called up somebody and he said, यार वो IT वाले को भेज देना. And the product guy was like, sir, we are tech and product. Tech and product help करता है आपको solution बनाने में, and IT helps you manage the basic infrastructure of the company, right? So there is a difference. हाँ ठीक है, दोनों सेम ही होता है मेरे लिए, राइट. सो आई थिंक ये रिएक्शन होता था 2015-16 में. बट द इंडस्ट्री, आई थिंक इंश्योरेंस इंडस्ट्री की सबसे अच्छी बात है ना, ये इंडस्ट्री सीखती बहुत जल्दी है और इनको हवा का रुख बहुत जल्दी समझ में आता है. तो दिस इंडस्ट्री रियलाइज इन 2015-16 व्हेन a bunch of us started talking to them that the industry is slowly moving towards digitization and they rapidly evolved, right? तो वो फर्स्ट तो ये था कि इनको ये समझाना कि डिजिटाइजेशन ज़रूरी है. दूसरा बात है कि हम इंश्योरेंस, देखो आप हमारे साथ काम कर लो. तो आप जब छोटे होते हो तो थोड़ा तो मुश्किल होता है, बट यू रियली हैव टू बी परसिस्टेंट, एंड आई थिंक दैट इज़ व्हेन यू बिल्ड डीप रिलेशनशिप्स विद पीपल. I think a bunch of people whom I built relationships at that point of time across insurance companies, those relationships still stay with me. I proudly call them my relationships, and those people helped us move ahead in life. To give you an example, there was a company called L&T Insurance, right? They were amongst our first partners. The folks from there moved to HDFC Ergo, and they made sure that HDFC Ergo also becomes a core partner for us. एंड आई थिंक देयर आर मल्टीपल सच स्टोरीज. तो आपको मेहनत करनी पड़ती है, परसिस्टेंट रहना पड़ता है. कुछ दरवाजे आप पे बंद होते हैं, कुछ दरवाजे आप पे खुलते हैं, बट फाउंडर की ज़िंदगी यही है.
आपको ये ज़िंदगी जीनी है, ये आपका चॉइस है। तो आप इस सिचुएशन में राइट स्पेशली जब डिस्ट्रीब्यूशन बना रहे हो टेक बना रहे हो एट व्हाट पॉइंट एंड हाउ डू यू फिगर आउट अ वे कि यार नाउ दिस इज हाउ वी ब्रिंग द डिस्ट्रीब्यूशन एंड टेक टुगेदर सो एट व्हाट स्टेज डज दैट स्टार्ट टू लाइक रियली शो रिजल्ट्स मतलब हमारे लिए ये और नहीं था, ये एंड था. आई ऑलवेज टेल एवरीबडी दैट इंश्योरेंस देखो इज़ अ एजेंट फोकस्ड कंपनी बिल्डिंग टेक फॉर द एजेंट्स. सो वी आर अ टेक प्लेटफॉर्म, वी आर अ टेक प्लेटफॉर्म फर्स्ट, वी आर अ डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म सेकेंड. क्योंकि हमारे जो कोर कंज्यूमर हैं एजेंट पार्टनर्स हैं, हमको एजेंट को डिजिटाइज करना है, हमको एजेंट की ज़िंदगी आसान करनी है. तो वो हम तभी कर सकते हैं जब हम टेक पे फोकस करेंगे. तो हम पहले टेक कंपनी है, फिर हम डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी. हमने पहले अच्छा टेक बनाया, एजेंटों के साथ बैठ के अपने एजेंट भाई बहनों का तकलीफ समझ के, फिर जब वो टेक बन गया तो फिर हम उनके साथ फील्ड पे जा जाके हमने और एजेंट भाई बहनों को हमारे साथ जोड़ा. Got it. Let's move on to the next one, right? This is the last one. How is Insurance Dekho planning to supercharge its growth with its latest funding? ये तो पुराना क्वेश्चन है, तो मैंने भी देखा हुआ है. ठीक है, ये तो बहुत पुराना, 3 महीने पुराना सवाल है. उसके बाद तो एक और फंडिंग राउंड हो गया ना तो क्वेश्चन स्टिल स्टैंड तो अभी जो पैसे आए हैं आई थिंक वो हमारे ऊपर और जिम्मेदारी देते हैं कि मतलब अ बंच ऑफ न्यू इन्वेस्टर्स हैव कम एंड जॉइंड आवर कैप टेबल लाइक MUFG फ्रॉम Japan, Beams FinTech, which is India's first fintech focused fund. We've got Cardiff, BNP Paribas Cardiff, which for the first time globally has lent its name on the cap table of any startup. They've never done it globally. Our existing investors, Goldman, TVS and Avatar Venture Partners have also reposed their trust and doubled down on us. बट इस पैसे के बाद आई थिंक हम 3 चीज़ें करेंगे. एक थोड़ा सा ब्रांड बनाना है हमको, जैसे हमने बोला ना कि हमारे पास जीतू भैया थे, फरहान अख्तर थे, अब उसको और कैसे और बेटर कर सकते, बड़ा कर सकते हैं ब्रांड को, इस पे फोकस होगा. दूसरा भी 1800 शहरों में हमारे पार्टनर है. अब हमको भारत देश के 6 लाख गाँव में जाना है, तो गाँव में जाने की हम तैयारी कर रहे हैं. तीसरा टेक प्रोडक्ट पे और खर्चा करना है. हैंड ऑन हार्ट आई थिंक I have not done a good job in allocating resources to tech and product. Ish, if you are listening to this, it's for you, buddy. या मतलब थोड़ा अपने भी नंबर बना लेता हूँ ना. और चौथा is from a M&A perspective. I think the market is ripe for some level of consolidation. A lot of people who built great businesses now are looking to join hands with people who understand tech product and have access to capital. So I think that is another area which we are looking at. That's very interesting because there'll be a lot of founders out there, right? जो कह रहे हैं कि यार हम भी डिस्ट्रीब्यूशन प्ले बना रहे हैं, हमको भी बहुत बड़ा बनाना है, और वो लोग भी बहुत सिमिलर टाइप के पिचेस मार रहे हैं टू इन्वेस्टर्स, राइट? बट यू आर वन ऑफ द यूनिक गाइज हु एक्चुअली रेज्ड 1,000 crores इतने अर्ली राउंड में. कैन यू टेक अस बिहाइंड द सीन्स स्टार्टिंग में? व्हाट फर्स्टली हाउ डिड यू डिसाइड कि अच्छा इतना अमाउंट है, and how did that kind of come to transpire कि वो हो भी गया, that you got that first 1,000 crores in Series A? I think we were lucky to have great partners in both rounds in terms of investment bank. In the first round, we had a great investment bank as our partner, Haitong India. In the second round, again, we had another great investment bank, Indigo Edge. So both our partners worked very closely with us in helping us refine our business plan, what is the amount of capital etc. it is required. तो मतलब फंड रेज ऐसा नहीं होता कि आप सुबह सो के उठते हो और आप बोलते हो कि मैं कल से फंड रेज पे जा रहा हूँ. उससे 2-3 महीने पहले का प्रोसेस होता है. यू मीट अ कपल ऑफ इन्वेस्टमेंट बैंक्स, यू फर्स्ट पिच टू इन्वेस्टमेंट बैंक्स टू एक्सेप्ट योर मैंडेट, राइट? सो आपका एक स्वयंवर उसी समय हो चुका होता है. देन सम बैंक्स विल अग्री दैट यू नो वी वांट टू वर्क विथ यू and this is the broad valuation range etc which you can get to. Then you work with them on the business plan, presentation etc. Then there's a broad valuation which has already been agreed to, which they will go out and try to get you. You've also agreed on a broad amount which you will raise. But once you go out and hit on the market, then there is some demand which you will get, or at times if you're unlucky you may not get any demand for no fault of your. आपका business अच्छा बना है सब कुछ, बट शायद लोगों को आपका सेक्टर नहीं समझ में आ रहा है, शायद कंपनी नहीं समझ में आ रही है, शायद मार्केट ख़राब है, या रशिया यूक्रेन का वॉर और चल गया है, कुछ भी हो सकता है ना. तो वैसा जब इन्वायरमेंट होता है तो यू डोंट नो. बट थैंकफुली इन आवर केस वी हैड ग्रेट पार्टनर्स हु हेल्प्ड अस फाइन ट्यून आवर business pitch, who helped us fine tune our strategy, worked with us on the amount of capital that we could raise, and we had demand in the market.
फॉर बोथ आर राउंड्स एंड वी वर एबल टू रेज इट. और इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है. दिस इज़ ब्रॉडली अ फाउंडर डिसाइडिंग कि मेरे को अगले 5 साल में यहाँ तक कंपनी पहुँचानी है, और वो कंपनी को 5 साल 10 साल में यहाँ तक पहुँचाने के लिए मेरे को अभी इतने पैसों की ज़रूरत होगी. Now I'll take a little bit of a personal approach to this fundraise जो आपका हुआ था, right? You come from humble origins, and this amount itself was so big, right? How does somebody actually reconcile those numbers, right? कि इतना बड़ा number जब hit करता है, what was that change like? I'm very curious to hear that when that money hits the bank and it's 1,000 crores. सो हमने Feb 13 को फंड अनाउंस किया था. पैसा Feb 8 से आना स्टार्ट हुआ था हमारे अकाउंट में. तो जो हमारे पहले इन्वेस्टर थे जिनका पैसा आया था वॉज अवतार वेंचर पार्टनर्स. तो मैं बॉम्बे से फ़्लाइट पकड़ रहा था, शाम की 4 बजे की फ़्लाइट है. और पुनीत जो हमारे CFO है, उन्होंने मेरे को एक मैसेज भेजा. मतलब व्हेन यू गेट मनी इन योर बैंक अकाउंट, राइट, क्योंकि पुनीत का नंबर दिया हुआ है, तो पुनीत ने एक मैसेज भेजा. मेरे को समझ में नहीं इसने क्या मैसेज भेजा है. तो मैंने पुनीत को कॉल किया. मैंने कहा भाई ये क्या है. तो पुनीत ने बोला अवतार का पैसा आ गया. एंड मैंने उतने पैसे एक साथ अपने अकाउंट में नहीं देखे थे, 80-100 करोड़ रुपए के आसपास. फिर जब तक मैं फ़्लाइट से लैंड किया तब तक पुनीत का 2 मैसेज और आ गया कि इन दोनों इन्वेस्टर के भी पैसे आ गए. तो वो अलग अलग मैसेजेस आए थे. तो इन 2 days वी हैड द एंटायर 800 करोड़ इन आवर बैंक अकाउंट. तो मैंने उसको बोला यार मेरे को एक बार लॉगिन आईडी पासवर्ड देगा, बिकॉज एज CFO ही हैज़ एक्सेस टू इट, इवन इफ आई नीड टू टेक इट आई लास्ट के. तो उसने बोला नहीं दूंगा. तो मैंने कहा यार मेरे को स्क्रीनशॉट भेज दे. तो उसने वो स्क्रीनशॉट भेजा था. एंड आई सॉ दैट स्क्रीनशॉट मल्टीपल टाइम्स रात को. देन आई शोड इट टू माई डैड कि पापा देखो आपके बेटे ने इतनी बड़ी कंपनी बनाई है एंड इतने पैसे हैं. एंड डैड्स बीइंग डैड, मेरे घर का नाम गुड्डू है. गुड्डू अभी कुछ नहीं किया तुमने. तुम देखो कुमार बाबू ने क्या किया है. कुमार बाबू इज़ कुमार मंगलम बिरला. माई डैड हैज़ वर्क फॉर बिरलास थ्रू आउट. तुम देखो कुमार बाबू ने क्या किया है, ठीक है. एंड ही इमीडिएटली ब्रिंग्स यू टू अर्थ, है ना. बट यार एक मिडिल क्लास आदमी के लिए तो उतने पैसे कभी भी नहीं देखे जीवन में, कभी भी नहीं देखे. तो आई थिंक इट्स माई पेरेंट्स ब्लेसिंग्स दैट आई वॉज लकी टू सी इट एंड आई एम स्टिल लकी टू सी इट. That's a wonderful story, you know. और this thing about बड़े numbers, right? आपको लगता है क्या कि जब and this is coming from me personally, right? कि एक बार आपको जब बड़े numbers समझ में आने लग जाते हैं, right? There is just an indication of how big the mission starts to become. And आपको फिर smaller problems solve करने में मज़ा नहीं आता, right? And you're always kind of trying to think bigger beyond that, right? It's not just that what you can do with the money, but it's just a mindset shift which opens up, right? Was that something that you've been feeling since the size of the fundraisers ballooned? यार फंडरेज के साइज से नहीं है. मतलब व्हेन यू आस्किंग मी दिस क्वेश्चन आई जस्ट अगेन इन माय मेंटल मॉडल आई वेंट बैक टू 2017. तो 2017 में हम दिन की 10 पॉलिसी करते थे. तो उस समय मेरा रिव्यू हुआ था. तो मतलब बोर्ड ने बोला यार कुछ बड़ा कर अंकित. तो मैंने कहा बड़ा क्या करूँ. उन्होंने बोला आप 300 पॉलिसी हर महीने की कर रहे हो. दिस इज़ दिसंबर 2016. दिसंबर 2016 दे सेड आप दिन की आप महीने की आप 300 पॉलिसी कर रहे हो. आप मार्च में ना 1000 पॉलिसी पे एग्जिट करो. दैट इज़ 3x ग्रोथ, राइट. एंड वी सेट करेंगे एंड वी डिलीवर्ड 1000 पॉलिसीज़. फिर जब वो 1000 पॉलिसी कर दिया उसके 6 महीने बाद उन्होंने बोला कि यार कुछ और बड़ा करो. तो हमने कहा क्या करें. तो उन्होंने बोला 10,000 पॉलिसी महीने की करो. टीम चेज इट, वी डिलीवर्ड इट. फिर सितंबर 2019 में मोटर व्हीकल एक्ट का एक चेंज आया था एंड द एंटायर बिजनेस स्काई रॉकेटेड. हमने दिन में 10,000 पॉलिसी की. तो फ्रॉम 1000 पॉलिसीज अ मंथ टू 10,000 पॉलिसीज अ मंथ टू 10,000 पॉलिसीज अ डे, राइट. दैट वॉज आवर जर्नी. सो आई थिंक पैसे से आपका सपना बड़ा नहीं होता. आपका जो सपना बड़ा होता है ना, आपके सोच और आपके जिगर से होता है. मैं एक्चुअली उसी पे पॉइंट कर रहा था, राइट. देयर इज अ बुक कॉल्ड आई थिंक 10x इज ईजियर देन 2x, राइट. उसका संक्षेप में बताऊं तो ये है कि इफ़ यू ट्राइंग टू डू समथिंग एंड यू ट्राइंग टू गेट ट्वाइस एज गुड एट इट, यू विल डू द सेम थिंग्स एंड ट्राई टू get better at that, right? But if you have to go 10x, you have to just start thinking from first principles, ground up again,
right? So yeah, that's what I had come to, but we're not done yet. The last part of this, right? We're gonna keep this fun and we're gonna keep it snappy, so you won't get too much time to think. Okay? This is a pop quiz. The first word that comes to mind when I say the word money. Perk. First word that comes to mind when I say the word intrapreneur. Roti kapda makan. Okay? The first word that comes to mind when I say insurance. Suraksha. When I say fun. Don't say insurance, Ego. Dancing on Punjabi songs. The first word that comes to mind when I say entrepreneurship. कुछ बड़ा बनाना है. Okay, fill in the blanks. The best Indian startup founder, in my opinion, is? Ratan Tata. No, good answer. The book that left the biggest mark on me as an entrepreneur is? Godfather. Elaborate a little bit. यार मतलब कहाँ इटली से कोई बंदा आया था, ठीक है, इतनी सारी बीमारियाँ थी, वो अमेरिका में जाके मतलब ही वॉज अ गुड फॉर नथिंग, देन ही रियलाइज कि यार मैं ऐसे कर सकता हूँ, एंड ही हैड द बॉल्स टू फाइट फॉर समबडी एल्स, एंड देन स्लोली ही वॉन द रिस्पेक्ट, ही क्रिएटेड सच अ बिग ऑर्गेनाइजेशन, and then when he was about to die, he had the foresightedness to pass on everything to his son, right? And then he made sure that his son only took actions after he's not there on the earth, so that whatever commitment he had given to people, those commitments also get met, है ना? तो मतलब हर चीज़ से आप कुछ अच्छा सीखते हो, हर चीज़ से आप कुछ ख़राब सीखते हो. तो मतलब from Godfather I learned that you can be fearless, right? If you're fearless, you have patience, and you have the ability to think calmly. You can conquer the entire world. फिर favorite Netflix show Narcos ही होगा, right? Alright. Dash is my one skill without which I wouldn't have been as successful. Persistence. Zid. Dash is your path through financial freedom. Having enough money to take care of my parents. India will be a dash $1 trillion economy by 2030. सपने बड़े देखो, $1,000 trillion Yeah, इकोनॉमी. come on. Realistically. आई थिंक अब रियलिस्टिक यार, फाउंडर ना कभी रियलिस्टिकली नहीं सोचता, वो हमेशा बड़ा सोचता है. मतलब यू थिंक फॉर द मून, एटलीस्ट यू लैंड अप इन द स्काई. ठीक है, Still need a number. बोल तो दिया 1,000 trillion. Oh, chalo, theek hai. I think with that, I would like to thank you, Ankit, for being here, for answering all our questions so patiently, and hopefully you keep killing it that the way you are. Thank you, everyone. Please give it up for Ankit.